بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شبانہ میری بہت پیاری دوست تھی، کبھی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتی تھی۔ اس کی ماں سوتیلی تھی، اسی لیے اپنے دکھ سکھ کی باتیں میرے ساتھ شیئر کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ ہماری دوستی ایک دو دن کی نہیں، بچپن سے تھی۔ شبانہ کو مجھ پر ایسا اعتماد تھا کہ سکی بہنوں کو بھی شاید ایک دوسرے پر نہ ہوتا ہو۔ جب ہم نے میٹرک پاس کیا تو والدین نے ہماری شادی کی فکر شروع کر دی۔ آگے پڑھانے کی حق میں وہ نہ تھے، اور پڑھاتے بھی کیسے جب کہ ہمارے علاقے میں دور دور تک کوئی غرض کالج ہی نہ تھا۔ میرا رشتہ تو بچپن سے میرے چچا زاد سے ملا تھا، لیکن شبانہ کے والدین کو اس کے لیے کافی پریشانی اٹھانی پڑی، کیونکہ کوئی موزوں رشتہ اس کے خاندان میں موجود ہی نہ تھا۔ کافی تنگ و دد کے بعد آخر ایک مالدار گھرانے سے اس کا پیغام آ گیا۔ یہ زمیندار لوگ تھے، لڑکا اکلوتا اور تمام جائیداد کا وارث تھا۔ ایسی لڑکی چاہیے تھی جو خوبصورت بھی ہو۔ گاؤں میں ان دونوں کسی لڑکی کا میٹرک پاس ہونا بھی عزیز کی بات تھی۔ پاس دونوں گھرانوں نے ایک دوسرے کو موزوں سمجھ کر بات پکی کر لی۔ میری شادی کے 6 ماہ بعد شبانہ بھی بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ رخصتی کے وقت وہ بہت خوش تھی، پھول کی طرح کھلی ہوئی اور شاداب دلہن بن کر 14ویں کا چاند لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے کان میں کہا تھا، دولہا میاں تو دیکھتے ہی تو تم پر فدا ہو جائیں گے، سنا ہے وہ بھی کم خوبصورت نہیں۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس کی وہ مسکراتی مسکراہٹ آج بھی میری آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے۔ ولیمے والے دن میں نہ جا سکی کیونکہ میاں کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی۔ میں نے تو جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن پھر میں نے 15 دن بعد دولہا دلہن کی دعوت کا انتظام اپنے گھر پر کیا۔ جب شبانہ دعوت پر اپنے شوہر کے ہمراہ آئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ خاموش بھی اور بجھی سی ہے۔ مجھے کچھ تشویش ہوئی کیونکہ وہ بہت زیادہ بولنے والے تھے، انداز بڑا ناپا تولا سا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیوں ہے؟ وہ تو میری بہت بے تکلف سہیلی تھی، بات بات پر کھلکھلانے والی اور خوش مزاج۔ اس کا دولہا تو جوان اور خوش شکل تھا، زمیندار گھرانے کا خوشحال شخص تھا۔ پھر بھلا اس سے ایسی کون سی بات تھی جو شبانہ کے اس رویے کا موجب بنی تھی؟ شبانہ کی مرجھائی ہوئی صورت دیکھ کر ایک نام سے زخم میرے دل پر لگا تھا۔ اس وقت تو اس سے کوئی سوال نہیں کیا، البتہ چند روز بعد اس کے گھر ملنے چلی گئی۔ اتفاق سے اس کا شوہر گھر پر نہ تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی جو ابھی تک سجا ہوا تھا کاغذ پھولوں سے۔ کچھ خاطر تواضع اور رسمی باتوں کے بعد میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، شبانہ کیا بات ہے؟ آخر کیوں اتنی خاموش نظر آتی ہو؟ کیا سسرال میں کوئی دکھ ملا ہے؟ بولی، کوئی دکھ نہیں، سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ دیکھو میں تمہاری بچپن کی ساتھی ہوں اور تمہارے رگ رگ سے واقف ہوں۔ پہلے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، اب بھی مت چھپاؤ۔ کہنے لگی، اب کسی اور کا راز بھی میرے راز میں شامل ہے، اور یہ ایسی امانت ہے جس میں خیانت نہیں کر سکتی۔ راز بتا کر خیانت ہی تو کروں گی، اور ایسا میں قیامت تک نہیں کر سکتی۔ ایسا مت سوچو شبانہ، اور میں اور تم اب بھی ایک ہیں۔ جیسے ہم پہلے ایک دوسرے کے رازوں کو امین تھے، اب بھی رہیں گے۔ یہ عہد زندگی کے آخری سانسوں تک باقی رہے گا۔ خدا را مجھے اور اذیت میں نہ رکھو۔ غرضہ بڑی جدوجہد کے بعد میں نے اسے قائل کر ہی لیا اور وہ راز بتانے میں آمادہ ہو گئی۔ اس نے کہا، ہونا تو تم جانتی ہو میں فراز سے شادی پر کتنی خوش تھی۔ میرے دل کی سلیٹ خالی تھی، اس پر پہلا نام اس کا لکھا گیا، لیکن میں کم نصیب تھی کہ وہ مجھے مکمل انسان کے طور پر نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ میں کبھی نہیں، یوں سمجھ لو کہ اسے شادی سے کچھ غرض نہ تھی، لیکن ماں باپ کی حقیقت کا علم نہیں تھا۔ میرے سسر صاحب اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانا چاہتے تھے۔ ہر باپ کی طرح انہیں بھی اپنے اکلوتے فرزند کی خوشی دیکھنے کی چاہت تھی۔ وہ اپنی زمین اور جائیداد کا وارث چاہتے تھے۔ روز روز کے اثرات سے فراز پریشان تھے، لیکن اس قدر شرمیلے تھے کہ والد کو بتا نہ سکے کہ شادی کرنے سے کسی لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ بالآخر والدین جیت گئے اور بیٹے کا شادی کے لیے مجبور کر دیا۔ فراز مارے باندھے دولہا تو بن گئے، لیکن انہوں نے پہلے ہی دن ساری بات کھل کر مجھے بتا دی کہ میں نے سوچا تھا کہ ایک بار والدین میرے سر
सेहरे की खुशियाँ देख लें, फिर मैं कुछ दिन बाद तुमसे झगड़ा करके तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। तुम जहाँ चाहो अपने वालिदैन की मर्ज़ी से शादी कर लेना। उन्होंने ये बात रोकर इतनी बेबसी से कहा कि मेरा दिल काँप गया। मैंने तलाक लेने से साफ इनकार कर दिया। बदनामी का ये दाग अपने दामन पर ना लगने दूँगी। मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मुझे मिल गया। वो मुझे पहले ही रोज़ से अच्छे लगने। इनकी सूरत, इनकी बातों ने मेरे दिल में घर कर लिया। सोचा कि अब ज़िंदगी इन्हीं के साथ गुजार दूँगी। शायद कि कुदरत को मेरा इम्तहान मकसूद हो। खुद को इबादत में गुम करके जीवन गुजार दूँगी। मेरा रब यही चाहता है, इससे नज़दीक हो जाऊँ और दुनियावी रिश्ते को आसानी समझ लूँ। मालूम नहीं मेरी सोच सही थी या गलत, मगर दिल के बहलाने को कोई ना कोई तवील दरकार होती। सो मैंने भी इसी तरह की तवीलों में पनाह ले ली। अब मैं उदास और परेशान नहीं हूँ। किसी किस्म के दुख का एहसास मेरे दिल में नहीं। शबाना ने बड़े हौसले से अपना राज मेरे दिल के दामन में डालकर कहा, एक बार इस वादे को दोहरा दो कि मेरी ज़िंदगी तक कम से कम तुम इस राज को अपने दिल में ही रखोगी, कभी किसी के सामने अफाश ना करोगी। मैंने इससे वादा कर लिया। वो मुतमिन तो पहले ही थी, मज़ीद मुतमिन होगी। दूसरी बार मिली तो बोली कि सोनिया, फराज बहुत अच्छे इंसान है, वो मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे भी इनसे मोहब्बत हो गई है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन एक बात का वादा उन्होंने मुझसे लिया है कि हमेशा इनके राज को राज रखूँगी और कभी इनके ख़ानदान के लिए रिसवाई का सबब नहीं बनूँगी। इनमें खूबियाँ बहुत सी हैं, जो कमी है वो कुदरत की जानिब से है। इनका कोई मुदावा इनके अख्तियार में नहीं है। मैं इसकी बात समझ गई थी। अपनी सहेली का हौसला देखकर मैं दंग रह गई, लेकिन इसने मुझे इन अल्फाज में तसल्ली दी कि सोनिया, जैसे तुम इतना बड़ा इशू समझ रही हो, मेरे नज़दीक वो कोई बड़ा मसला नहीं। अगर इंसान चाहे तो हर तरह से ज़िंदगी गुजार सकता है। दरअसल कुछ लोग बने ही कुर्बानी के लिए होते हैं। तभी इनके कदमों में ज़िंदगी बसर करने का अहद कर लिया। मैंने इसकी बातें सुनकर हैरान थी। मैंने पूछा, क्या तुमने भी कोई अहद फराज से लिया है? हाँ, मैंने इनसे ये कहा है कि उम्र भर के लिए ये वादा कीजिए कि आप कभी इशा के बाद घर से बाहर नहीं रहेंगे, वरना मुझे तन्हाई का एहसास होगा और क्या पता कि वो वहशत मुझे घेर ले। इन्होंने वादा किया कि हर हाल में बाद नमाज इशा रात से सुबह तक मेरे साथ रहेंगे। ये अजीब व गरीब वादा था, ताहम अपनी सहेली को मुतमिन पाकर मैं भी पुरस्कून हो गई। इनकी शादी को 12 बरस बीत गए। वो पुरस्कून जीवन गुजार रहे थे। कभी किसी से कोई शिकायत, कोई झगड़ा ना सुना था। लेकिन जितने ये दिनों पुरसकून थे, फराज के वालिदैन इस कदर बेसकून थे, क्योंकि इनका अकलौता वारिस भी अभी तक औलाद की नेमत से महरूम था। रफ्ता रफ्ता उन्होंने बेटे के कान खाना शुरू कर दिए कि दूसरी शादी करो ताकि जायदाद का वारिस पैदा हो, वरना ये सब दौलत, ज़मीन, जायदाद किस काम की। फराज इनकार करता रहा, लेकिन जब वालिदैन ने इसरार तर्क ना किया तो इसने बहुत सोच समझ कर एक शर्त रख दी कि मुझे शादी करनी है तो ज़मींदार बलाल के बाप ने इसके दादा को गोली मारी थी। वो इनके घर के सरबराह का कातिल था। इससे ख़ानदानी दुश्मनी चल रही थी। इस कड़ी शर्त को भी फराज के वालिदैन ने कबूल कर लिया। जी तोड़कर अपने बाप के कातिल की पोती का रिश्ता हासिल करने की तंग वदूद में मसरूफ़ हो गया। बालाखिर इसकी कोशिश कामयाब हुई और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता फराज को देना मंजूर कर लिया। जब इस अमर का इल्म शबाना को हुआ तो वो हक्का बक्का रह गई। इसे अपने कानों पर यकीन आया, मगर जब फराज ने भी तस्दीक करके तमाम सूरत हाल बताई तो शबाना ने कहा, फराज, तुम गलती करने जा रहे हो। तमाम औरतें मेरे मादे सब्र नहीं होती। इन लोगों से बरसों की ख़ानदानी दुश्मनी है। जब शादी के बाद ये राज खुलेगा तो सोचो कि हालात क्या रुख अख्तियार करेंगे। दुश्मनी दुगनी ताकत से ज़िंदा हो जाएगी। अब भी वक्त है, शादी से इनकार कर दो और फराज अख्तियार कर लो। फराज
बज़दिल था, ख़ास तौर पर वो अपने बाप के सामने दुम नहीं मार सकता था। इसने सोचा कि अब क्या करें, बीवी भी सही कहती है। इधर शादी की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से हो रही थी और वो था कि खौफ से मरा जाता था। शबाना तो एक अजीब लड़की थी जिसने इसका पर्दा रख लिया था, लेकिन हर लड़की शबाना जैसी तो नहीं होती। आने वाली ने तो कोई ना कोई क़यामत खड़ी करनी ही थी। तारीख रख दी गई। फराज खुद को इस बनौर से निकाल सका तो इसने सोचा कि इससे पहले कि इज़्ज़त का जनाजा निकले वो खुद को क्यों ना मनो मिट्टी तले जा सोए। भला इसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा भी क्या है। तभी इसने खुदकशी का फ़ैसला कर लिया और एक हकीम से भारी रकम देकर जहर खरीद लाया। वो दवा जिसको इसने जहर समझकर फांका था, दरअसल वो जहर नहीं थी बल्कि इसकी ज़िंदगी के लिए तरीक़ेयात साबित हुई। न जाने कैसी दुआ थी कि इसे खिलाते ही सर चकराया और हालात गैर हो गए। वो जहाँ खड़ा था वहीं ज़मीन पर लेट गया। अब मरना तो है, मौत का सामान भी खुद ही तो किया था। इसके बाद इसे उल्टियाँ शुरू हो गई। जूं जूं दुआ रग में हलकत करती गई, इसको होश जाते रहे। दोबारा होश आया तो इसने पास रखा पानी का जग मुँह से लगा लिया। कुछ देर बेसादा पड़े रहने के बाद जिस्म में फिर से ताकत आई। 2-3 घंटे बाद वो फिर से उठा बैठा और हयात ने इसके जिस्म को ताकत तवानाई बख्श दी। वो जो मौत से गले मिलने चला था, किसी ने इसे फिर से हाथ पकड़कर चलना शुरू कर दिया। यकीन ना आ रहा था वो अब तक जिंदा है। खुदा जाने हकीम साहब के पास ये कैसी जादू दवा थी जिसने इसे ज़िंदगी बख्श दी थी। कुदरत भी कैसे कैसे मुझे दिखाती है। ज़हर अमृत बन चुका था। एक बार फिर इसे वालिदैन की खुशी के लिए सहरा बांधे ही बन पड़ी थी। गांव के माहौल में अगर कोई मर्द इतने अरसे तक बे औलाद से महरूम रहे तो इसे खुद बेखुद दूसरी शादी का अज़ल मिल जाता और कोई भी इस पर उफ़की का इजहार नहीं करता। कौन मर्द 12 साल तक सब्र करता अगर इसे औलाद की खुशी ना मिले। कसूरवार अगर औरत ना भी हो तब भी कसूरवार इसके सारा सर जाता है। शबाना भी लब सी लिए किसी से कोई शिकवा ना किया, फराज से भी नहीं जिसने इससे वादा किया था। वो भी ईशा के बाद इससे दूर नहीं रहेगा। आज दूरी की पहली रात थी जब वो अपने जवान साथी के बगैर अपने कमरे में तन्हा थी। इसे कितना गम था कि ये कोई नहीं जानता था। इसने ईशा तक शोहर के लौट आने का इंतज़ार किया और नमाज अदा करने के बाद अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि इन दोनों में ये तय था कि अगर किसी रात ईशा के बाद फराज ना आया तो फिर वो कभी इसके लिए अपने कमरे का दरवाज़ा ना खोलेगी। आज वो दिन आ चुका था। सुबह जब वो अपनी नई दुल्हन के कमरे से निकला तो शबाना का ख्याल करके बहुत परेशान हुआ। ये सोचा इसके लिए बहुत तकलीफ़दा थी। इसके बगैर इसने रात किस तरह गुजारी होगी। खुद को मलामत करने लगा और जब मलामत का बोझ ना सह पाया तो इस घर की तरफ चल गया जहाँ इसने शबाना के हमरा ज़िंदगी के 12 साल गुजारे थे। दरवाज़ा खुला पड़ा था। बेधड़क घर के अंदर पहुँच गया और सीधा अपने बेडरूम की तरफ गया। दरवाज़ा अभी तक अंदर से बंद था। इसने दरवाज़ा खटकाया तो कोई जवाब नहीं मिला। वो मसलसल दस्तक देता रहा, दरवाज़ा खटकाता रहा, लेकिन सिवाय खामोशी के कोई दूसरा जवाब वसूल नहीं हुआ। इसने खिड़की तोड़ डाला, अंदर दाखिल हो गया। सामने शबाना बिस्तर पर सो रही थी, मगर ये मामूल का सोना ना था। वो गहरी नींद सो रही थी। वो सौतन का दुख बर्दाश्त ना कर सकी और मौत को गले लगा लिया। इतने बरस सब्र के साथ पाकीज़गी की उम्मीद रहने वाली इसकी जुदाई ना सह सकी। जब फूलों से दामन भरने का वक़्त आया, दामन झटक कर चली गई और किस्मत वाली ने अपना दामन फूलों से भर लिया। शबाना की मौत का दुख हर एक को था, लेकिन फराज के वालिदैन को कुदरत ने उम्र के आखिरी हिस्से में वो खुशी अता कर दी कि जिसके वो बरसों से मुंतज़िर थे। फराज को दूसरी शादी रास आ गई। वो 3 बच्चों का बाप बन गया। इसने जो दुआ जहर समझकर खाई थी वो इसके लिए शफा बन गई। बच्चों की मोहब्बत के सहारे इसने बाकी ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन शबाना को कभी ना भुला सका। जब भी इसका जिक्र आता इसकी आंखों भीग जाती। अल्लाह हाफिज़।